Hello students, and first we start with the chapter 1 Pharmacotherapeutic, which contain the topics Introduction, Scope and Objectives, Rational Use of Medicines, and moreover we will cover in next video. First we start with Introduction. Introduction of Pharmacotherapeutic. Pharmacotherapeutic is basically branch of pharmacology which you have seen the subject in diploma second year. Pharmacotherapeutic, we study pharmacology and pharmacotherapeutic is relatable. Pharmacology and pharmacotherapeutics is relatable with their same use, but the difference between both of the subjects are pharmacology basically related to the classes and category of medicines like antihypertensive, cardiovascular disease, anti-asthmatic. But in pharmacotherapeutics, our main focus on disease, means how the disease can be cured and the types of disease, introduction of disease, etiology and other terms related to the disease. Pharmacology, the main concentration and main focus on medicine, and pharmacotherapeutic main focus on disease. Pharmacotherapeutics derived from two words, pharmakon and therapy. Pharmacotherapeutics derived from two words, pharmakon and therapy. Pharmakon means the drug and therapy means treatment. Treatment means the manner of curing the disease, means which therapies we use, which treatment we use to cure the disease are concluded in pharmacotherapeutics. Now, the definition of pharmacotherapeutic. First, we should learn about the pharmacotherapy. Pharmacotherapy is a process in which we study about the process and manner of administration the drug and medicine to cure the disease. And pharmacotherapeutic is a science in which we study about the pharmacotherapy. Means in definition, we learn about the how to administer the drug and the dose of medicine. After the definition of pharmacotherapeutic, we will learn the branches of pharmacotherapeutic. Pharmacotherapeutic has two branches, pharmacokinetics and pharmacodynamic. Pharmacotherapeutic has two branches, pharmacokinetics and pharmacodynamics. In pharmacokinetic included absorption, distribution and elimination. Absorption means the breakdown of the drug and absorb in the different part of body. Distribution means the drug reach to the blood and circulate in the body. Elimination means after the absorption and distribution, drug eliminated by the body. And pharmacodynamic is systemic effect and cellular effect. Systemic effect means drug effect on the body organ and the body organ response against the drug. Cellular effect means drug reaches to the cell. After absorption of drug reaches to the cell and cellular activity on drug. This complete process of pharmacotherapeutic, which provide us the information about how to administer the drug and how to supply the drug in whole body to cure and manage the disease. Now next is objective of pharmacotherapeutics. फार्माकोथेरापेटिक की स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? फार्माकोथेरापेटिक्स से हमें पता चलता है कि हमें ड्रग की कितनी डोज किस टाइम पे पेशेंट को देनी है, कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है किसी डिजीज़ को क्योर करने में. लाइक objectives of pharmacotherapeutics are ensure the proper dose of drug
avoid the ADR, ensure the effective. The objectives of pharmacotherapeutics are ensure the proper dose, avoid the ADR means adverse drug reactions, and ensure the effective treatment of disease. मीन्स फार्माकोथेरापेटिक्स से हमें ये पता चलता है कि मेडिसिन की कितनी डोज, किस क्वांटिटी में, किस टाइम पे और एडवर्स ड्रग रिएक्शन से बचा के किस तरह से देनी है ताकि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके डिजीज़ का. आफ्टर द ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स. स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स में है फर्स्ट टू गेट द नॉलेज ऑफ ड्रग केमिकल रिएक्शंस. मीन्स बॉडी में ड्रग के जाने के बाद कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है ये हम फार्माकोथेरापेटिक्स से पता लगाते हैं. मीन्स ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, या कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ को क्योर कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज डिसाइड द करेक्ट ड्रग डोज. मीन्स क्वांटिटी ऑफ ड्रग डोज इज रिक्वायर्ड टू क्योर द डिजीज़. लाइक पैरासीटामोल 500 mg यूज़ होती है नॉर्मली फीवर या कोल्ड के लिए, बट आफ्टर कोविड द टॉलरेंस ऑफ पैरासीटामोल इज़ इंक्रीज्ड and 500 mg paracetamol is not enough to cure any disease in normal person. So now the dose of paracetamol is increased like 650 mg. Next is decide the suitable route of administration. Which route is suitable to cure the disease, like oral route, rectal route, topical route. Which route is required to cure the disease? Fourth is decide the drug tolerance. Like I said the example of paracetamol, same drug tolerance decide करते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स से कि ये ड्रग डोज इतनी इनफ होगी किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए या फिर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी होगी, वो हम डिसाइड करते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स से. लास्ट इज डिसाइड द ADR, ड्रग फूड इंटरेक्शंस एंड एनवायरमेंट कंडीशंस. फर्स्ट इज ADR. ADR मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस डिसाइड करते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स से कि ड्रग का बॉडी में जाने के बाद कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन ना हो जिसकी वजह से बॉडी को हार्म हो. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस डिसाइड करते हैं. ड्रग फूड इंटरेक्शंस, कई बार हमने देखा है कि कुछ मेडिसिन्स खाने से पहले और कुछ मेडिसिन्स खाने के बाद दी जाती है. क्यों? क्योंकि फूड इंटरेक्शंस अफेक्ट करता है मेडिकामेंट को, इसलिए ड्रग फूड इंटरेक्शंस भी हम डिसाइड करते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स में. मीन्स कौन सी मेडिसिन भूखे पेट बिना खाए देनी है और कौन सी मेडिसिन आफ्टर मील देनी है. एनवायरमेंट कंडीशंस. एनवायरमेंट कंडीशंस मीन्स which medicines affect with environments like humidity, moisture या heat, temperature. तो मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी अगर एनवायरमेंटल कंडीशन उनके रिवर्स हुई तो. आफ्टर द स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक, नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियोनल यूज ऑफ मेडिसिन. रेशियोनल एंड इर्रेशियोनल. रेशियोनल means everything is proper, means use of drug by qualified doctors with proper and suitable administration of modern medicines. Means everything is good, proper, practically, logically, perfect and approving. And in irrational, improper, wrong dose, wrong diagnosis, prescription wrong, wrong compounding. कहने का मतलब है रेशियोनल यूज़ ऑफ मेडिसिन्स में हम सबसे फर्स्ट रेशियोनल का मतलब देखेंगे. रेशियोनल का मतलब है प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर प्रॉपर मेडिसिन डोज डिसाइड करेगा, प्रॉपर डायग्नोस करेगा, प्रॉपर मेडिसिन देगा, प्रॉपर कंपाउंडिंग होगी मेडिसिन्स की एंड प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा. बट इर्रेशियोनल, इन इर्रेशियोनल में हर चीज़ गलत है, सब कुछ गलत. improper diagnosis, improper prescription, improper compounding, wrong dose, wrong diagnosis, wrong prescription and wrong compounding. रेशियोनल का मतलब होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ
drug dose which we give to the patient. And rational use of medicine में rational की definition है use of drug by qualified doctor with suitable administration route with proper dose of modern medicines. मीन्स medicines जो पुरानी है और जो मॉडर्न है उनके कंपाउंडिंग में डिफरेंस है, इसलिए उनका डोज और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज है. डेफिनेशन ऑफ रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन्स के बाद आता है कि रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत क्यों पड़ी. वाई रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड. The factors which affect the dose of drug and the effective medicament. First factor is during manufacturing. शुरू करते हैं. जब ड्रग को बनाया जाता है, जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग की जाती है तो अभी से ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर केमिकल्स, प्रॉपर रिएक्शंस, प्रॉपर मेडिसिन यूज़ हो, प्रॉपर डोज यूज़ हो उस मेडिसिन को बनाने के लिए. करेक्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, करेक्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए. जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वो करेक्ट होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, उनमें इम्प्योरिटीज़ नहीं आए, वो स्टरलाइज्ड होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर. जो प्रोसीजर है मैन्युफैक्चरिंग का वो फॉलो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आईपी या फिर आइडियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंड इज़ अराइजेज ड्यू टू इंडिविजुअल. पर्सन में ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टर्स है जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं ड्रग डोजेस एंड द इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन्स. लाइक सेक्स. सेक्स मीन्स जेंडर. जेंडर मीन्स फीमेल एंड मेल. मेल एंड फीमेल में डोज क्वांटिटी अलग अलग होगी, ये वेरी करता है सेक्स से. एज. एज मीन्स डोज ऑफ ड्रग डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पेशेंट. चिल्ड्रंस के लिए डोज अलग डिसाइड होती है और एडल्ट के लिए अलग एंड ओल्डर्स एजेड लोगों के लिए अलग. वेट. जिनमें ओबेसिटी ज़्यादा है उनके लिए डोज अलग डिसाइड होगी और जो स्लिम है, जिनके अंदर वेट कम है, उनके लिए डोज अलग डिसाइड होगी. एलर्जी. अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है तो वो ड्रग अवॉइड की जाती है किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए. ड्रग टॉलरेंस. टॉलरेंस का मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था कि डोज जो है वो इंक्रीज़ करनी होती है. अगर इतनी डोज मीन्स 500 mg इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इज़ नॉट प्रॉपर टू क्योर द डिजीज़, सो वी हैव टू इंक्रीज द डोज. अराइजेज ड्यू टू एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स. एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की वजह से भी इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन द बॉडी अफेक्ट होता है. सीजनल वेरिएशन, एज आई सेड, कोल्ड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट करते हैं मेडिसिन को और मेडिसिन की प्रॉपर रिएक्शंस नहीं हो पाती या फिर उनमें कंटामिनेशन, माइक्रोबैक्टीरियाज ग्रोथ होते हैं जिसकी वजह से मेडिसिन प्रॉपर वर्क नहीं करती, वो ख़राब हो जाती है. एनी पैनेडेमिक. किसी भी पैनेडेमिक की वजह से डोजेज जो डोज होती है ड्रग की वो इफ़ेक्ट होती है. एज आई सेड द एग्जाम्पल ऑफ कोविड में पैरासीटामॉल 500 mg की टॉलरेंस ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से 650 mg पैरासीटामॉल यूज़ करनी पड़ी. तो पैनेडेमिक, कोई भी पैनेडेमिक आप जैसे कोविड को जानते ही हैं, तो पैनेडेमिक की वजह से ड्रग की जो टॉलरेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमें डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती है. तो रैशनल यूज़ में ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से रैशनल यूज़ की ज़रूरत है. अगर मैन्युफैक्चरिंग सही से नहीं हुई, अगर किसी पेशेंट में आपने एनालाइज नहीं किया कि कितनी डोज रिक्वायर्ड है डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स मीन्स सीजनल वेरिएशंस एंड एनी पैनेडेमिक इफ़ेक्ट विच कैन अफेक्ट द मेडिसिन इफ़ेक्ट. वाई रिक्वायर्ड रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन्स के बाद है हाउ टू इम्प्रूव द RUM मीन्स रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का यूज़ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट है एजुकेशन प्रमोशन. एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि कितनी डोज रिक्वायर्ड है पेशेंट की एज, सेक्स, वेट, इनके अकॉर्डिंग, उनकी एलर्जी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और जो डिज़ीज़ है उसको क्योर करने के अकॉर्डिंग. एजुकेशन प्रमोशन का मीन्स है कि जो डिग्री
जो एजुकेशन एक फार्मासिस्ट को दी जाती है उसमें ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को भी ऐड करना चाहिए और प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि किसी मेडिसिन का इफ़ेक्ट किस लिए यूज़फुल है और कैसे वो हार्मफुल हो सकता है। उन्हें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का पता होना चाहिए, उन्हें एलर्जीज़ का पता होना चाहिए, वो पेशेंट की हिस्ट्री से डायग्नोस कर सके कि कौन सी मेडिसिन इसे एलर्जेटिक हो सकती है और कौन सी मेडिसिन बेनिफिट दे सकती है। एंड एजुकेशन प्रमोशन में ही प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर सिलेबस, ओनली सिलेबस को फॉलो नहीं किया जाए, प्रॉपर प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए ताकि स्टूडेंट्स को ये पता हो कि मेडिसिन का इफ़ेक्ट किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे डिक्रीज़ करते हैं। सेकंड इज़ रेगुलेटरी एंड मैनेजमेंट प्रमोशन। रेगुलेटरी मीन्स उसका रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर सुपरवाइज़र, प्रॉपर इंस्पेक्शंस, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि ये कोई भी एरर हर स्टेप में, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्पेंसिंग में कोई भी एरर ना आए और प्रॉपर मेडिसिन डोज ही पेशेंट तक पहुँचे। द लास्ट वन इज़ बाय प्रॉपर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। एज आई सेड, मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रॉपर हुई तो पेशेंट तक पहुंचने वाली मेडिसिन भी इम्प्रॉपर ही रहेगी। तो प्रॉपर कंपाउंडिंग मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में ही करेक्ट प्लेटफॉर्म, करेक्ट इक्विपमेंट्स, करेक्ट प्रोसीजर फॉलो हो और उसके बाद डिस्पेंसिंग तक करेक्ट फॉर्म में ही मेडिसिन डिस्पेंस हो ताकि पेशेंट तक पहुंचने वाली जो डोज है वो करेक्ट हो और पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या साइड इफ़ेक्ट से बचा के करेक्ट मेडिसिन मिले। तो दैट 3 points are हाउ टू इम्प्रूव द रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम इर्रेशनल मीन्स इम्प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, इम्प्रॉपर कंपाउंडिंग, इम्प्रॉपर डिस्पेंसिंग, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द रिमेनिंग चैप्टर ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। ओके, थैंक यू।